हाँ जी, हुण जिहड़ी आह वीडियो है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਫੋ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ 98% ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਟ 2 to 10% ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਵੀ RCT ਕੀਤੀ ਆ। ਪੱਕਾ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਓਵਰ ਯੂਜ਼। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ 10 RCTs 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਫਾਈਲ 5 ਮੋਲਰ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ 5 ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੋਲਰ ਕਰ ਲਏ 10 ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੱਟ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਅਨੈਟਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕੈਨਾਲ ਟਾਈਟ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਸ ਵਾਚ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਫਾਈਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਧੱਕੋ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਢੂਗੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਸ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡਿਫੈਕਟ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਫਾਈਲਸ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਫਾਈਲਸ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੂਟ ਦੀ ਅਨੈਟਮੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਵੇਚਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਪੀਏ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ CBCT ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਲੀ ਕੋਈ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈਗਾ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਿੰਗੁਅਲੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਜ਼ਲ ਡਿਸਟਲ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੀਜ਼ਲ ਆ ਕਿ ਡਿਸਟਲ ਆ। ਹੁਣ ਬਕਲੀ ਕੋਈ ਕਰਵੇਚਰ ਪਿਆ ਆ ਲਿੰਗੁਅਲੀ ਪਿਆ ਪੈਲਟਲੀ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਾਈਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਪਾਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੋਟਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਨੰਬਰ ਤੱਕ 20 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡ ਫਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੋਟਰੀ ਚੱਕੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਟਰੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਪਾਥ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ 10 RCTs ਹੋਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ 2 ਕਰਕੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਫਾਈਲ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਏਪੈਕਸ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਏਪੈਕਸ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਏਪੈਕਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੀ ਆ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਪੀਸੈਕਟਮੀ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਾਈਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਟੁੱਟੀ ਆ ਦੰਦ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ
ਫਿਰ ਏਪੈਕਸ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ 98% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਫਾਈਲ, ਤਾਂ 98% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ 2% ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਏਪੈਕਸ ਐਪੀਕਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਫਾਈਲ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਏਪੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡੋਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਈਲ ਦਿਸੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਬਾਹਰ, ਜਦ ਦਿਸੂਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਐਂਡੋਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਸਤਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਬਾਈਪਾਸ ਟੈਕਨੀਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈਪਾਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਈਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਉਸ 'ਚ ਪਾਉਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਲੈਂਥ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੈਂਥ ਜਾ ਰਹੀ ਫਾਈਲ ਦੀ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਗੇਟਸ ਕਲੀਡਨ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਫਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਲੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਦਾ ਪੀਸ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ 'ਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਲੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 8 ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ C+ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਟਿੰਗ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 6 ਨੰਬਰ 8 ਨੰਬਰ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੇ 10 ਵਾਰ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। C+ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਨਾਲ ਬਲੋਕ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਫਾਈਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਨਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਲਿਪਟੀਕਲ। ਜੇ ਫਾਈਲ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਕਲੀ, ਲਿੰਗੋਲੀ, ਮੀਜ਼ਲੀ, ਡਿਸਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਪਾਓ, 8 ਵਾਲੀ ਪਾਓ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਪਾਈ। 10 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕਰਵ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੀ ਕਰਵ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਾਚ ਵਿੰਡਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੰਗੇਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਵੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣਾ, ਵਾਚ ਵਿੰਡਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਸ 1 ਜਾਂ 2 mm ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਾਉਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋੜ ਦੋਗੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਚੱਲ ਗਈ, 2 mm ਅੱਗੇ ਗਈ, ਫਿਰ 8 ਵਾਲੀ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ 6 ਵਾਲੀ ਪਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਲੈਂਥ ਆਪਣੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, EDTA ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਆਲਰੇਡੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਾਲ ਹੋਰੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹ ਐਪੈਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਨਾਲ ਦੀ ਅਨੈਟਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਫਟੀਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਚਲੋ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ
बाईपास करना। और हमने उसको जो प्रीवियस नंबर की फाइल से है, हमने अपनी कैनाल का मैक्सिमम पल्प और डेब्रिस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सो वी कैन टेक अ चांस ऑफ लीविंग इट। नेक्स्ट बाईपास जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर आता है रिट्रीव यानी हमने फाइल को निकाल लीजिए। दोस्तों, आप रिट्रीव तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको दिख ना रहा हो। तो दिखेगा कैसे? माइक्रोस्कोप से। तो अब ये माइक्रोस्कोप तो अब आएगा ही 5 लाख रुपए का। जो सस्ते माइक्रोस्कोप है वो कुछ काम करते नहीं है। तो आपको अगर रिट्रीव करना है तो यू नीड माइक्रोस्कोप विच नीड इन्वेस्टमेंट एंड नीड लॉट ऑफ ट्रेनिंग। इवन आई हैव माइक्रोस्कोप, और मैं माइक्रोस्कोप में देख के भी रिट्रीव सिर्फ लक के ऊपर ही कर पाता हूँ। अभी मैं डेफिनेटली रिट्रीव नहीं कर पाता। आई नीड मोर प्रैक्टिस विद इट। लास्ट आता है सर्जिकल। तो सर्जिकल जो हमारा वो है, इसका मान लेते हैं आपकी जो फाइल है वो आपकी एपेक्स से क्रॉस होकर टूट गई है, या आप उसको बाईपास कर रहे थे एंड इंसिडेंटली आपका जो फाइल है वो बाहर ही चली गई है। तो यू डोंट हैव अदर ऑप्शन देन सर्जिकली रिट्रीव इट। तो आज तक मैंने ये सर्जिकल ऑप्शन नहीं अपनाया है, भगवान की दया से ज़रूरत नहीं पड़ी है। हाँ, ऐसा भी कंडीशन हुई है जब मैंने एपेक्स के बाहर क्रॉस करके एपेक्स से टूट गई है, तो 1-2 केस में उसमें पेन हुआ है जो मुझे बाद में निकालने पड़े हैं। अब देखते हैं बाईपासिंग टेक्निक को। तो बाईपास करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आर्मामेंटेरियम क्या चाहिए? आपके पास 6 नंबर की और 8 नंबर की फाइल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास और अच्छा होगा कि आपके पास C+ फाइल्स हों, तो C+ फाइल्स ये डेंसप्लाई की फाइल है, दे हैव बेटर मेटलर्जी, यानी जो इनकी टिप है वो स्ट्रॉन्ग है एंड कटिंग एज है C+ फाइल का। जो काम आपकी नॉर्मल के फाइल 3-4 फाइल्स में करेगी वो अकेली C फाइल्स में कर देती है। इट हैज़ बेटर ग्रिप एंड स्ट्रेंथ। तो अगर आप इसकी ये वाली फाइल्स आपके पास होंगी तो इट विल बिकम लॉट ईजियर देन नॉर्मल वन। तो जो ये C+ फाइल है, दे आर स्पेशल फाइल्स, तो आप इनको अपने पास रखिए। थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, ये शायद 750 रुपीज़ की 6 फाइल्स आती हैं, तो आप इनको अपने पास रख सकते हैं। एंड थर्ड चीज़ जो आपने रखनी है वो है पेशेंस। और फोर्थ चीज़ जो आपने रखनी है वो ये रखना है कि आपकी फाइल्स बेकार होंगी। आपकी 3 to 4 फाइल्स विल स्पॉइल परमानेंटली। तो आप जब पहली 6 नंबर 8 नंबर की फाइल डालोगे तो वो तो डालते ही ख़त्म हो गई। अब आप नेक्स्ट केस में यूज़ नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ 6 नंबर और 8 नंबर की फाइल थोड़ी कॉस्टली होती है, बट नो अदर ऑप्शन। 1-2 फाइल्स आपकी 10 नंबर की भी खराब होगी। एक बार 10 नंबर से आपका बाईपास हो गया तो फिर फाइल्स इतनी जल्दी खराब नहीं होंगी जितनी 6, 8 और 10 नंबर की फाइल्स हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि एडवांटेज क्या है बाईपास करने का। एडवांटेज क्या है कि भाई ये एक सबसे जो अच्छी बात है ये है कंजर्वेटिव प्रोसेस। मतलब कि जो आपका फाइल रिट्रीवेबल जो प्रोसेस है उसके ऊपर जो फाइल से ऊपर का जो पोर्शन का डेंटिन है उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हम कर देते हैं। तो ये एक कंजर्वेटिव तरीका है और ये आसान भी है, सिंपल है। एक बार आपने 5-6 अगर बाईपास करनी सीख ली तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे करनी है, एंड थिंग्स विल बिकम ईजी एज यू गेन एक्सपीरियंस। और एक बार अगर आपका जो पेटेंसी है वो गेन हो गई, वर्किंग लेंथ गेन हो गई, तो आपकी रूट कैनाल 100% सक्सेसफुल रहने वाली है अगर आप उसको प्रॉपर प्रिपेयर, इरिगेशन एंड ऑब्जर्वेट कर देते हो। तो क्या इस जो हमारा ये बाईपासिंग टेक्निक है इसका क्या कोई डिसएडवांटेज भी है? बिल्कुल है। कई बार मान लेते हैं कि ये मेरी कैनाल है और ये यहाँ पे फाइल टूट गई है, तो मैंने जब ये फाइल से जब मैं इसे रास्ता बना रहा था तो मैंने ये अपना रास्ता बना दिया। यानी एक रास्ता तो जो नॉर्मल था, एनाटॉमिकल रास्ता था, और दूसरा मैंने उसको खोद खोद के एक नया ही रास्ता बना दिया है। एक मतलब कि एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैनाल कर दिया है। एक ये पॉसिबल कारण हो सकता है। सेकंड कारण क्या हो सकता है कि आपसे रास्ता तो बना नहीं, लेकिन आपने परमानेंट एक लेज बना दिया, जिसको एक तरफ तो फाइल पड़ी हुई है, एक तरफ लेज बना दिया कि भाई वो आगे कुछ जा ही नहीं सकता उसके आगे। थर्ड का चीज़ें क्या हो सकती हैं कि जो बहुत कॉमनली होती हैं, मेरे साथ तो बहुत कॉमनली होते हैं, कि आप एक और फाइल उसके साथ तोड़ दोगे।
मतलब कि एक फाइल है, आप इसके साथ रास्ता बना रहे हैं, यहाँ पे भी फाइल फ्रैक्चर होगी, अब वो आपने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। तो ये मेरे साथ बहुत कॉमनली होता है, और ये ज़्यादातर क्या होता है, क्यों होता है, मैं जानता हूँ मेरी 10 नंबर की फाइल ख़राब हो चुकी है और मैं उसको फिर भी ओवर यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई एक्सीडेंटली ब्रेक वन मोर फाइल विद इट। एंड लास्ट जो इसका रिस्क हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि आपकी ये फाइल थी और इसको है ना पुश कर कर करके इसको बाहर निकाल दिया आपने, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअल टेक्निक की। तो पहली बात कि ये पॉसिबल भी है, उसे एक फाइल है उसको बाईपास हम करना पॉसिबल भी कैसे हो गया। एक छोटा सा रास्ता था, आपने उसको ज़बरदस्ती ब्लॉक कर दिया एक मेटल से, तो आपको एक और रास्ता मिल कैसे जाता है। उसका एक सिंपल सा रीज़न क्या है कि जो हमारी जो कैनाल है वो कभी भी सर्कुलर नहीं है, हमारी जो कैनाल है वो ज़्यादातर इलिप्टिकल है। और मान लेते हैं कि आपने ये एक से फाइल ऐसे इसके अंदर फंसा दी, तो देयर विल ऑलवेज बी थोड़ा बहुत पैसेज होगा इसके एडजेसेंट से, लेकिन जो दिक्कत की बात है कि ये पैसेज किस तरफ है ये हमें नहीं पता, तो हमें ये बार बार ढूंढना पड़ेगा ये पैसेज कहाँ है, ताकि हम उस पैसेज के अंदर यहाँ पे फाइल डालें और उसके बाद रास्ता बनाएं। इस टेक्निक के जो एक और एडवांटेज है जो मैं आगे पीछे बताना भूल गया, वो ये है कि इसके अंदर विजिबिलिटी ऑफ फाइल नहीं चाहिए। जैसे हमें रिट्रीव करना है अगर फाइल, तो हमें वो फाइल दिखनी चाहिए तभी रिट्रीव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर हमें रिट्रीव करने का ज़रूरत, लेकिन इसके अंदर हमें डायरेक्टली दिखने की ज़रूरत नहीं है। इवन कर्वेचर के बाद भी अगर फाइल टूटी हुई है तो हम उसको ईजिली बाईपास कर पाते हैं। तो इसका तरीका क्या है, मान लेते हैं कि ये मेरी रूट है, ये इसके अंदर कैनाल है, यहाँ पे मेरी फाइल ब्रेक है। तो मेरे के जहाँ तक ये मेरी फाइल है, पहले अगर वो ऑलरेडी प्री फ्लेयर्ड है, इसके ऊपर का हिस्सा अगर फ्लेयर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वाले ऊपर के हिस्से को हल्का सा मैं इसको वाइड करूँगा। वाइड में एक जीजी ड्रिल से कर सकते हैं और वन फ्लेयर फाइल से कर सकते हैं। तो इस केस में जीजी ड्रिल्स को मैं पसंद करता हूँ इसके ऊपर के टॉप पार्ट हिस्से को वो करने के लिए। लेकिन आप जो दूसरी फाइल्स हैं वो भी आप कर सकते हैं, जैसे ऊपर से मान लेते हैं कि भाई 25/4 से ऊपर से प्रिपेयर कर दो, अगर नहीं है तो एक रास्ता मिल जाएगा। एक थोड़ा सा फाइल से ऊपर होगा तो एक फाइल को जो दूसरा रास्ता है उसको ढूंढने के अंदर आसानी होगी। तो अगर मान लेते हैं आपकी हैंड फाइल ही टूट गई, 2% टूट गई है, उसके ऊपर का हिस्सा आपको फ्लेयर कर देना है ताकि आपको जो नया रास्ता है वो ढूंढने में आसानी हो। सेकंड क्या है कि आपको जो फाइल से आपने रास्ता ढूंढना है, मैं नॉर्मली 10 नंबर की फाइल से स्टार्ट करता हूँ। 10 नंबर की से क्यों करता हूँ, क्योंकि जो 6 नंबर की या 8 नंबर की है उनकी वो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी थिन फाइल, तो वो अगर वो मेटल से मेटल टकराता है तो वो बेंड हो जाती है। तो मैं इसलिए पहले 10 नंबर से करता हूँ। अगर मेरे को फेलियर मिलता है मेरे को 1-2 अटेम्प्ट के बाद, तो मैं फिर 8 नंबर पे आता हूँ, फिर मैं 6 नंबर के ऊपर आता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है 10 नंबर से मैं 15-20 मिनट तक तैयार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उसको 10 नंबर से 1-2 अटेम्प्ट देता हूँ, अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो नहीं है। अगर आप मान लेते हैं कि भाई ये मेरा कैनाल है, यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है और 10 नंबर की फाइल मैं पहले ये यहाँ से लेके सिर्फ 2 mm एडवांस करूँगा। अब क्या है कि वो एक इनिशियल रास्ता मिल गया है फाइल को वहाँ तक जाने का। नाउ आई विल टेक 8 नंबर फाइल जो कि वो फर्दर एडवांस करूँगा। आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने 1 mm से ज़्यादा या 2 mm से ज़्यादा फाइल को एट अ टाइम एडवांस नहीं करना है। अगर आप एक ही साथ 2 mm से ज़्यादा एडवांस कर देंगे तो आपकी फाइल के ब्रेकेज होने के चांसेस ज़्यादा, यानी एक पहले टूटी हुई थी और एक आप साथ में तोड़ दोगे। और जो लेज बाईपास करने में और जो इसको बाईपास करने में काफ़ी फ़र्क, सिर्फ यही फ़र्क है कि इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ है ना रेजिस्टेंस फील होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्पेस तो आपकी पुरानी फाइल ने ले रखा है, तो यू विल फील अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस व्हाइल बाईपासिंग इट। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे एडवांस होऊंगा। वंस मैंने वर्किंग लेंथ अटेन कर ली,
फिर मैं 8 नंबर से फिर 10 नंबर पे जाऊंगा, फिर 15 पे जाऊंगा, फिर मेरे लिए प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से थ्योरेटिकली तो इतना ही है। एंड जो ये बाईपास करना है, लेज रिमूव करना है, टैक्टाइल सेंसेशन, इज जस्ट लाइक क्रिकेट। मतलब कि आप एक्चुअल में है ना, क्रिकेट की जो गेम है हमारी, उसका कोई थ्योरी नहीं है। अगर आपसे पूछे कि भाई ये आपने बैट ऐसे घुमाना है, बॉल को ऐसे मारना है, आप नीचे से ऊपर कर, इसकी थ्योरी डजेंट मैटर। वो बॉलर जैसी बॉल कर रहा है, आपने उसके हिसाब से उसी वक्त डिसीजन लेना है। तो ये थ्योरी आपका कुछ भी नहीं करेगी, जस्ट एक ओवरव्यू देगी। आपने कैनाल कैसी है, कैनाल की एनाटमी कैसी है, किस तरफ कर्वेचर था, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपने अपने आप ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने हैं। तो चलिए एक मॉडल के ऊपर भी देख लेते हैं कि हमने एक फाइल को कैसे बाईपास कर सकते हैं। है एंडो का, और इसके अंदर ये देख ली, मैं सारी फाइल्स डाल के देख रहा हूँ एंड सारी कैनाल्स पेटेंट है हमारी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक ज़बरदस्ती फाइल तोड़ देता हूँ। तो मैं एक मोटी फाइल उठाता हूँ और मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ये ओवर यूज फाइल है, टूट जाएगी, तो ये तोड़ दी मैंने। अब मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये दिख तो नहीं रही है फाइल, ये रेड कलर के पल्प के अंदर छुप गई है। लिया तो मैंने मॉडल इसलिए था कि भाई मैं इसको देख सकूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, हल्की सी झलक दिख रही है। तो फिलहाल मैंने ये मीजोबक्कल रूट के अंदर तोड़ी है, और अगर मैं ये इसके अंदर देखो, ये चमकती हुई आपको कैनाल और इसके ऊपर दिखेगी। एंड मैं इसका सबसे पहले एक मेज़र कर लेता हूँ, ये कितने एंड के ऊपर टूटी हुई है। तो मेरी फाइल बिल्कुल नहीं जा रही है, और उससे ऊपर के हिस्से को मैं मेज़र कर लूँगा। और ताकि ये क्यों मेजर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर की कैनाल प्रिपेयर नहीं कर रखी है, मैं इसको थोड़ा सा प्री फिलियर करूँगा। तो मैं एक मोटी फाइल लेता हूँ, और ये फ़िलहाल मेरे पास SX फाइल है, मैं जिससे इसको प्री फिलियर कर रहा हूँ। अब जैसे जैसे मैं प्री फिलियर कर रहा हूँ, देखेंगे कि फाइल का जो मेरे को ये चमकती हुई चीज़ दिख रही है और बड़ी हो जाएगी। तो आपने भी ऐसे ही, अगर आपका हिस्सा जो फाइल से ऊपर का है वो अगर आपको ने फ्लेयर नहीं कर रखा है, तो आपने फ्लेयर करना है। इट विल मेक योर थिंग्स ईजी। तो मैंने ये प्री फ्लेयर कर लिया है। अब मैं 10 नंबर की फाइल ले रहा हूँ, और इसको प्री कर्व करा, प्री बेंड नहीं करना है, अपना हल्का सा कर्वेचर देना है, ताकि वो डायरेक्टली उस फाइल के ऊपर ना जाके टकराए, इनफैक्ट वो साथ में कोई रास्ता ढूंढे। तो मैं पहले इसको डालूंगा, और कोशिश करूंगा जो इंटरनल सरफेस है किसी कर्वेचर को, उसके टूवर्ड डालने की सबसे पहले कोशिश करूंगा, और अलग अलग सरफेस के ऊपर ट्राई करता रहूँगा जब तक मेरे को कोई ऐसी जगह ना मिल जाए जहाँ पे मेरी फाइल फंस रही है। तो हल्के हल्के मेरी अब ये फाइल फंसने लग गई है, और ये मैं निकाल रहा हूँ तो वो निकल रही है। मैंने पूरी उसको इंगेज नहीं करना, इंगेज करूँगा तो मैं ये भी फाइल तोड़ दूँगा। मैंने 1 या 2 mm उसको वो करना, जैसे मैंने देखो थोड़ा सा ज़्यादा इंगेज कर दिया है, तो अब मेरे को फोर्स लगानी पड़ेगी इस फाइल को निकालने के लिए। अब ये मेरी फिंगर से आप देख सकते हो कि कितनी फोर्स निकाले। अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता क्या है कि आप एकदम से फाइल को बाहर निकाल दोगे और आपका वो रास्ता खो जाएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपकी को फाइल पूरा उससे बाहर नहीं निकालना है, जस्ट 1 mm अप एंड जस्ट 1 mm डाउन। और अब जैसे ही निकाला तो ये देख भी सकते हैं कि मेरी फाइल है ना ऑलमोस्ट जा चुकी है। अगर ये पेशेंट होता तो मुझे ये फेंकनी पड़ती। अभी तो फिलहाल मॉडल है तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन पेशेंट में आपने ये थोड़ा सा एडवांसमेंट, जब भी आप ये विजिबल डिफॉर्मेशन देखो अपनी फाइल के अंदर तो उसको फेंक दो, नहीं तो उस फाइल को आप तोड़ देंगे। अभी देखिए कितनी जान लगानी पड़ रही है मेरे को निकालने के लिए। तो इस फाइल को ऐसे ही आप हल्का सा बेंड करते रहो, इरिगेट करते रहो। इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो कैनाल है ना वो लुब्रिकेटेड रहनी चाहिए एकदम से। अब जैसे जैसे फाइल थोड़ी करिए ये पल्प भी रिमूव होता जा रहा है और हल्की हल्की फाइल की झलक मेरे को साइड से दिख रही है। तो मैं दोबारा से एडवांस करूँगा इस फाइल को। तरीका वही है, वॉच वाइंडिंग मोशन, थोड़ा सा 2 mm एडवांस करूँगा, फिर उसके बाद अप एंड डाउन करूँगा, फिर एडवांस करूँगा, फिर अप एंड डाउन करूँगा। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस टू डू दैट। अब मैं इसको निकाल रहा हूँ। लेज में इतनी ताकत नहीं लगती है उसको फाइल को रिमूव करने में, इसमें यू विल फील द फोर्स, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम स्पेस है वो मेटल ने ले रखा है। और कई बार तो मेटल से मेटल ग्राइंड होने की आवाज़ भी आ रही होती है फाइल के अंदर से। तो मैं इसको एडवांस करता रहूँगा। मैंने थोड़ा सा एडवांस कर लिया है, मेरे ख्याल से मैं एपेक्स से अब 2-3 mm ही ऊपर रह गया हूँ। आई विल मेक वे, मुझे एक पूरी उम्मीद है, बाकी देखते हैं क्या होता है। ये मैंने करी, अब बाहर निकाला, ये एडवांस कर रहा हूँ।
थोड़ी फोर्स तो लगानी पड़ेगी और पेशेंस इज द की। पेशेंस लूज नहीं करना है, आपने इरिगेट करते रहना है, वो करते रहना है। और आपने फाइल भी चेंज कर लो, विजिबल डैमेज हुआ फाइल चेंज कर लो, नहीं तो आप फाइल को तोड़ दोगे। अब मैंने वर्किंग लेंथ अचीव कर ली है। एक बार 10 नंबर तक की मेहनत है, 10 नंबर तक की मेहनत में हो सकता है कि आपको आधा पौना घंटा 1 घंटा भी लग जाए। हो सकता है कि कई बार तो 1-1 डेढ़ घंटे पूरी सेटिंग से 10 नंबर से ही मैं रास्ता बना पाता हूँ। लेकिन अगर आपने 10 नंबर की फाइल से रास्ता बना लिया तो देन फिर कोई इतनी मेहनत का काम नहीं रह गया। अब मैं पहले 10 से बनाऊंगा, फिर 15 से बनाऊंगा, फिर 20 से बनाऊंगा। मिनिमम मेरे को 20 नंबर के 2% की फाइल्स हैंड फाइलिंग करनी है बिफोर आपको जो रोटरी फाइल्स है उसको उठाने से पहले। अगर आप मैक्रो ग्लाइड पाथ नहीं बनाओगे तो अगेन तीसरी फाइल भी तोड़ दोगे। अब ये मेरी 20 नंबर की फाइल हो गई है और मेरा वर्किंग लेंथ अचीव हो गया। एंड अब तो केस में कुछ नहीं रह गया, इरिगेट करना है, अच्छे से बीएमपी करनी है और ऑब्चुरेट करना है। ये मेरी 20 नंबर की 2% अब रोटरी फाइल है ताकि मेरा मैक्रो ग्लाइड पाथ प्रिपेयर हो जाए फाइनल।